Let me know if the screen is not visible. Okay. Hope the screen is visible to all of you. Okay, so I'm going to start the session. So in previous class, we have started the topic that is digital signal processing, that is classification of the system. Yesterday, or in last class, we have studied the system can be classified into six categories. Among these, we have already studied about static dynamic system, causal non-causal system, linear and non-linear system. Now today we will see about the rest of three types of system. So today first topic is time variant and invariant system. Point number 4. Time variant and invariant system. Okay. So the term time variant, that means it can vary with the time. So it is known as time variant. So after certain time, suppose अभी तुम लोगों का जो क्लास चल रहा है, ठीक है, ये 12 बजे से चालू हुआ. So whenever up at if I will take the class analysis the class at 12 or 12:30, then we will see that we will cover most of the topic regarding classification of the system. So now अभी तुम लोगों का at the starting of the class तुम लोगों के पास क्लास का जो प्रोग्रेस है, क्लास का जो वैल्यू है, that is, if I will say it is 0, then whenever I will take the class slot at 12:30, then obviously I will get some value कि वहां पे मेरा most of the topic discussion हो गया. So that is time variant. That is, मैं ये कर रहा हूँ कि टाइम जब मेरा चेंज हो रहा है, द सिस्टम also the output also changed. ठीक है, so this is time variant, that is vary with time. And if the class is not dependent on the time कि मैं 12 बजे चालू करूँ या 12:30 बजे टाइम स्लॉट को पकड़ूं, देखूंगा तुम लोग का प्रोग्रेस हुआ ही नहीं. सो दैट इज टाइम इनवेरिएंट, कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सो डेफिनेशन होगा a system is said to be time invariant if the characteristics of the system do not change with time.
then it is known as time invariant. If the characteristics of system will be changed according to the change in time, then it is known as time टाइम के साथ वैरी कर रहा है, सो इट इज नोन एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. Okay, this is the definition. So in this case you will see that at first cases system do not change with time. This is the first criteria for time invariant. ठीक है, and system will be changed in time. ठीक है, characteristics of the system will be changed according to time, then it is called time invariant. ठीक है, तो नाउ सिग्नल, एक सिस्टम किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? A system is dependent on the input, that is x of t, and आउटपुट दैट इज y ऑफ t. अगर y ऑफ t x ऑफ t में ये t का वैल्यू चेंज होने के बाद भी y ऑफ t चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट. अगर चेंज हो रहा है देन इट इज नोन एज टाइम वेरिएंट. सो अब देखेंगे कैसे चेंज होगा, हाउ इट विल बी चेंज. ठीक है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चीज को सिस्टम के थ्रू समझना पड़ेगा. सपोज दिस इज योर इनपुट सिग्नल. ठीक है, एंड दिस इज द सिस्टम, एंड फ्रॉम दिस सिस्टम मेरा आउटपुट यहां से निकल रहा है. ठीक है, सो दिस इज x of t, this is y of t. Now system at the initial stage. Now system को मैं अब क्या करूंगा, चेंज करूंगा, इनपुट को मैं चेंज करूंगा. सो इनपुट को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट को डिले करवाऊंगा. यहां से आके मैं इनपुट को डिले करवाऊंगा. ठीक है, इनपुट को डिले करवाऊंगा. सिस्टम यही है. ठीक है, सेम सिस्टम डिले हो रहा है, देन व्हाट एवर द आउटपुट विल कम दैट इज y डैश t, एंड ये हो गया सपोज a यूनिट, तो इसमें डिले कितना होगा, x ऑफ t माइनस a डिले हुआ. सो इफ ये जो आउटपुट है y डैश t इक्वल टू y ऑफ t, इफ y डैश t इक्वल टू y ऑफ t, देन दैट मीन्स टाइम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. डिले होने के बाद भी मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, डिले होने से पहले भी वही आउटपुट मिला था. सो इन दैट केस आई विल से दिस इज टाइम invariant. And if y dash t is not equal to y of t, then it is known as time variant. So इसको अब हम डिस्क्रीट सिग्नल के रेस्पेक्ट में देखेंगे. नाउ डिस्क्रीट सिग्नल के रेस्पेक्ट में देखेंगे.
तो डिस्क्रीट सिग्नल में मेरा इनपुट क्या आएगा, एक्स ऑफ एन, ये जाएगा एक सिस्टम के अंदर, वाई ऑफ एन देगा, ठीक है, दैट इज सिस्टम। नाउ एन यूनिट डिले करेंगे, के यूनिट डिले करेंगे, क्योंकि एन ऑलरेडी आई हैव टेकन सिस्टम, के यूनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एन माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा वाई ऑफ डैश, और ये डिले हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वाई ऑफ एन कॉमा के, दैट इज द डिले। सो इफ वाई एन, if yn equal to y of n comma k, then we can say that is delay, ठीक है। ये डिले हो रहा है, वाई एन इनवेरिएंट है, टाइम के साथ इनवेरिएंट है, सो टाइम इनवेरिएंट, and if does not equal to y of n comma k, then it is known as टाइम वेरिएंट। तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करके लिखेंगे, मॉडिफाई करके लिखेंगे कि सपोज y ऑफ n कॉमा के, y ऑफ n कॉमा के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ x ऑफ n माइनस के, ठीक है। ये हो गया मेरा इनपुट सीक्वेंस, मेरा आउटपुट सीक्वेंस, n डिले हो रहा है, ठीक है, और मेरा प्रीवियस मेरा जो वैल्यू था, ठीक है, वो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इनपुट में डिले कराएंगे, एक बार आउटपुट में डिले कराएंगे, देखते हैं, एक बार इनपुट में डिले करा दें, एक बार आउटपुट में डिले कराएं, देखते हैं क्या इक्वेशन आएगा। तो टू फाइंड whether the system is time invariant or not, there are few steps। तो फर्स्ट स्टेप जाएंगे, स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। पहला क्या है मेरा, x ऑफ n, दैट इज x ऑफ n मेरा इनपुट है सिस्टम, तो y ऑफ n आएगा आउटपुट, ठीक है। सो मैं एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट के ऊपर डिपेंड करूंगा। पहला स्टेप है डिले द इनपुट, ओके, डिले, फर्स्ट स्टेप इज डिले द इनपुट बाय के यूनिट। तो इनपुट को अगर हम डिले करेंगे तो x ऑफ n को k यूनिट डिले करने के बाद कितना आएगा, x ऑफ n कॉमा k। So now x of n comma k is sent to the system, and whatever we will get, that is y of n comma k, that is delay due to input. So input delay, so y of n comma k is the nothing but the output of the corresponding input x of n minus k. This is the first equation. This is the first equation. Next, second step. Okay. Now second step क्या है? Second step है now delay the output sequence. Delay the output sequence. एक बार इनपुट को डिले करेंगे, एक बार आउटपुट को। Delay the output sequence by k unit. तो आउटपुट सीक्वेंस को अगर डिले करेंगे तो क्या कितना आएगा, y ऑफ n कॉमा k, दैट इज आउटपुट को अगर हम डिले करेंगे, दैट इज y ऑफ n माइनस k, दैट इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल हो गया, सो दैट मीन्स y ऑफ n कॉमा k फॉर इक्वेशन नंबर 1, और इसको y डैश करते हैं, ठीक है, y डैश। सो y ऑफ n कॉमा k, क्योंकि n कॉमा k इज नथिंग बट द आउटपुट आफ्टर डिलेइंग द इनपुट,
now n comma k equal to n minus k, that is output section delay हो रहा है, so then it is known as time invariant. And if y of n comma k not equal to y of n minus k, then it is known as time variant. So we will see by using some example. ठीक है, we will see by giving some example. So example number 1 दे रहा हूं. Example number 1, that is question number 1, that is, sorry, example 1. क्या है? That is y of n equal to x of n plus x of n minus 1. इसको देखते हैं क्या आएगा, and check whether the system is time invariant or not. So ये है मेरा एग्जाम्पल. so इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो. ठीक है, so I have to find out whether the system is time invariant or not. ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा. सोल्यूशन बेटर आई एम यूजिंग. सो नाउ सी, मेरे पास सिस्टम है y of n इक्वल टू x of n प्लस x of n माइनस 1. ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है. नाउ मेरा इस सिस्टम के रिगार्डिंग मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, इस सिस्टम के रिगार्डिंग मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, दैट इज x of n plus x of n minus 1 will be the input. This is nothing but the input and it is given to a system, that is system, and the system will give me y of n, that is which is nothing but x of n plus x of n minus 1. So now इस पोर्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिप्रेजेंट द सिग्नल. ठीक है, इनपुट सिग्नल में देखो दो डिफरेंट टाइप का सिग्नल का एडिशन हुआ है, दैट इज सिग्नल एडिशन, दैट इज एडिशन. सो यहां पे होगा x ऑफ n, ये एक एडर होगा. x ऑफ n माइनस 1, दैट मीन्स 1 यूनिट डिले, that is n, sorry, that is delay that is delay 1. So this will become x of n minus 1. So now it is connected to this, so added हो गया. यहाँ पे जो मेरा सिग्नल निकल रहा है दैट इज x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1. नाउ मैं इसको क्या करूंगा, एक सिस्टम के थ्रू फेच करूंगा, दैट इज सिस्टम, एंड व्हाट एवर आई एम गेटिंग इज y ऑफ n, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1. ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट निकल रहा है.
ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये सिस्टम को एक एडर पोर्शन को ही एक सिस्टम पकड़ सकता हूँ, दैट इज अनदर मैटर। ठीक है, वो मैं डिटेल, वो मेरा हम लोग का पॉइंट ऑफ फाइंडिंग नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ फाइंडिंग है नाउ मैं ये सिस्टम देखूंगा, ये जो इक्वेशन है y ऑफ n इक्वल टू वेदर y ऑफ n इज टाइम इनवेरिएंट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप डिले द इनपुट, डिले द इनपुट बाय k यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ, सॉरी डिले द इनपुट मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज y ऑफ n कॉमा k। अगेन y ऑफ n कैन बी रिटन एज t ऑफ x ऑफ n, इट कैन बी रिटन। सो t ऑफ इनपुट को डिले कर दें, ठीक है, t ऑफ x ऑफ n माइनस के इनपुट को डिले करें। नाउ इंस्टेड ऑफ n यू विल पुट n माइनस के, सो x ऑफ n माइनस के प्लस x ऑफ n माइनस के माइनस वन। सो y ऑफ n comma k becomes x of k n minus k and x of n minus k minus 1. So this is equation 1. Second thing is, come to the next point. Now we will do the output delay. Okay, so delay the output by k unit. So output मेरा क्या है, y of n है, आउटपुट को डिले करेंगे y of n माइनस के, डिले कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है यहाँ पे, x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस वन। सो इफ y ऑफ n माइनस के हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी n है वो क्या होगा, n माइनस के प्लस x ऑफ n माइनस के माइनस वन, इक्वेशन 2 हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं y ऑफ n कॉमा k इक्वल टू y ऑफ n माइनस के। सो फ्रॉम 1 and 2 we can write y of n comma k equal to y of n minus k. So this is time variant or time invariant, whether the signal is time variant signal or invariant signal। अब ये सिग्नल टाइम वेरिएंट हुआ या इनवेरिएंट, invariant. okay, so this signal is known as time invariant। So now I got the answer, that is y of n equal to, so y of n equal to time invariant, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो ये टोटल सिस्टम, ये y ऑफ n लिखना गलती होगा, गलत होगा। सो द सिस्टम इज टाइम invariant system। Okay, so similarly you have to take different examples, that is और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले रहा है, एग्जांपल दैट इज एक सिस्टम है y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस 2n, ये एक सिस्टम दिया है। ठीक है, सो whether the system is time
वेरिएंट और इनवेरिएंट। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो हाउ आई विल फाइंड इट। तो मैं इसको रेट कर देता हूँ तो तुमको हाईलाइट होने में दिक्कत आसानी हो। ओके, सो नाउ आई हैव टू टेक दिस। सो सॉल्यूशन, सो मेरा सिस्टम क्या है, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस 2n। सो यहाँ पे मेरा इनपुट रहेगा x ऑफ माइनस 2n, फिर मेरा सिस्टम आएगा, फिर मुझे मिलेगा y ऑफ n equal to x of minus 2n. Okay, so now I have to check whether the system is time variant or invariant. Okay, so first step, delay the input. So y of n can be written as t of x of n. So अगर मैं इनपुट को डिले करूंगा तो मेरा इनपुट क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है, x ऑफ n का वैल्यू क्या है, x ऑफ माइनस 2n। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ x ऑफ n आई एम टेकिंग x ऑफ माइनस 2n। सो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होके हो जाएगा t ऑफ x ऑफ माइनस 2n। सो इसको अगर हम डिले करेंगे तो डिले वैल्यू क्या होगा, डिलेड input will be x of minus 2n minus k. So that is delay factor there. So x of minus 2n minus k. This is the equation 1. So this is equation 1. Now second is delay the output. Delay the output. Output क्या है, y of n है। सो y of n इक्वल टू x ऑफ माइनस 2n। सो y of n को अगर हम डिले करेंगे y of n माइनस k, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ n इस इक्वेशन में जहां पे n है वहां पे n माइनस k होगा। सो x ऑफ माइनस 2 n माइनस k, क्योंकि y ऑफ n का n फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम n माइनस k लिख रहे हैं। ठीक है, सो it becomes this minus 2n plus 2k। ठीक है, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। सो टेल मी वेदर द इक्वेशन 1 इज इक्वल टू वेदर इक्वेशन 2, is equation 1 equal to equation 2, yes or no? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अलग है या एक है? टेल मी, ये दोनों इक्वेशन सेम है या अलग इक्वेशन है? सर अलग है। अलग है, तो ये कौन सा सिग्नल होगा, तो सिस्टम होगा, इनवेरिएंट या वेरिएंट? वेरिएंट। वेरिएंट, गुड। सो that signal is known as the system is known as, since y of n comma n not equal to y of n minus k, so the system is time variant system। तो ये चीज याद रखना कि अगर इक्वल टू हुआ तो टाइम इनवेरिएंट, अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो टाइम वेरिएंट। सो नाउ नेक्स्ट में चले आते हैं, दैट इज हो गया टाइम वेरिएंट एफआईआर सिस्टम। and this system is known as
LTI सिस्टम, दैट इज इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वो वैरी करता रहेगा, दैट इज LTI सिस्टम। अगर एग्जाम में LTI सिस्टम पूछ दिया, सो डोंट बी एफ्रेड कि LTI सिस्टम तो पढ़े नहीं है। LTI सिस्टम इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी मूव टू FIR IIR सिस्टम। हो गया stable system, इस चैप्टर में दिया नहीं दिया। Okay, FIR system. So, can you explain what do you mean by FIR and IIR? Anyone? FIR system क्या होता है? FIR and IIR system. बुक में दिया नहीं है, हाँ। So, fifth one is FIR and IIR system. So, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। In FIR system, the output is dependent, or the output is calculated from present and past value of input signals. Then this is known as FIR system. That means finite impulse response. That is full form is finite finite impulse response, that is FI, ठीक है। और उसी का उल्टा हो जाएगा इन IIR, that is फाइनाइट का ऑपोजिट क्या है? इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट response, infinite impulse response. Though in FIR system, the output will be calculated from past and present value along with past output of the system.
सो ये ध्यान से देख, ठीक है, ये दोनों चीज कंफ्यूजन है थोड़ा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो ये ध्यान से देखना कि एफआईआर फिल्टर में आउटपुट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज आईआईआर सिग्नल में, यहाँ पे एक चीज लिखना था, प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज, ठीक है। सो ये चीज है, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कैलकुलेट फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट वैल्यू तो रहेगा ही, उसके साथ पास्ट आउटपुट वैल्यू भी कैलकुलेटेड होगा। दैट मीन्स एक सिग्नल सपोज हम ले रहे हैं, दैट मीन्स, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। एक सिग्नल हम लोग ले रहे हैं y ऑफ n, y ऑफ n इक्वल टू y ऑफ n माइनस वन प्लस x ऑफ n। तो यहाँ पे देखो y ऑफ n जो है उस वो है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू, प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू, प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू, ठीक है। y ऑफ n माइनस वन है पास्ट आउटपुट वैल्यू, पास्ट आउटपुट वैल्यू, एंड x ऑफ n जो है वो है प्रेजेंट इनपुट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट इनपुट वैल्यू। सो देखो ये जो प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू है ये डिपेंड किस किस के ऊपर कर रहा है, पास्ट आउटपुट वैल्यू एंड एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट वैल्यू। देन दिस सिग्नल इज कॉल्ड आईआईआर सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड आईआईआर सिस्टम। एंड एफआईआर सिस्टम में क्या होगा, ये इसी इक्वेशन को अगर हम this system is IIR system, IIR system, and if x of y of n equal to x of n plus x of n minus 1, तो ये क्या है, प्रेजेंट इनपुट वैल्यू, प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू, और यहाँ पे है तुम्हारा प्रेजेंट इनपुट वैल्यू, प्रेजेंट इनपुट वैल्यू, और ये है तुम्हारा पास्ट इनपुट वैल्यू, पास्ट इनपुट वैल्यू। सो यहाँ पे मेरा पास्ट आउटपुट वैल्यू को लेके हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा एफआईआर फिल्टर, सॉरी एफआईआर सिस्टम। सो सेम थिंग हैपेंस टू योर एफआईआर सिस्टम एंड आईआईआर सिस्टम। आईआईआर सिस्टम कब होगा, जब मेरा पास्ट आउटपुट वैल्यू, जैसे तुम लोगों का जो रिजल्ट है, ठीक है, 11-12 का रिजल्ट इज द आईआईआर सिस्टम, क्योंकि 11-12 एक साथ दिया जाता है, तो 11 में तुम्हारा आउटपुट कितना था और 12 का आउटपुट मिला के, दोनों मिला के मेरा 11-12 का मार्क्स एलोटेड होता है। योर बीटेक सिस्टम, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम, टोटल तुम्हारा जो लास्ट सेम में तुम्हारा टोटल हाउ मेनी परसेंटेज यू आर गेटिंग, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस एग्जाम में तुम लोग कितना परसेंटेज स्कोर करके आए हो, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, उसके साथ कंपेयर कर, उसके साथ रिलेट करके ही तुम्हारा प्रेजेंट, दैट मींस योर 8th सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो डिपेंड करता है प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स के साथ। वहीं पे 1 to 9th क्लास का, 8th क्लास का स्टैंडर्ड ले लो, क्या होगा, सपोज क्लास 5 में तुम्हें 80% मिला है, क्लास 6 का तुम्हारा आउटपुट जो है 70%। सो जब तुम बोलोगे तुम्हारा रिजल्ट कितना है, तुम 7th का क्लास 6 का मार्क्स बोलोगे कि मुझे 70% मिला, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन योर लास्ट ईयर। सो दिस इज एफआईआर, दैट इज फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स, कि ये फाइनाइट होता है, तो फाइनाइट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट,
ओके, आईआईआर क्या होता है? प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट along with past output value of the system. So this is FIR system, and the value which is dependent on the output value which is dependent on the present and past value of input along with past output values, then the system is known as IIR system. Okay, so next is, ये तुम लोगों का डिटेल पार्ट है फिल्टर पोर्शन में, तो आई विल डिस्कस ऑन फिल्टर पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, दैट इज पॉइंट नंबर 6। स्टेबल एंड unstable system. So can anybody explain what do you mean by stable system and unstable system? Anyone from your end? Stable and unstable system. Stable system and unstable system. Stable system, unstable system. Can anyone explain what is a stable system and unstable system? बता पाओगे? बता पाओगे? Anyone from your end? Can you explain what do you mean by stable system and unstable system? यस और नो? अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, यस बोलोगे तब मैं तुम लोगों को पहले सुनूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, दोनों साइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल सिस्टम एंड अनस्टेबल सिस्टम? यस और नो? इफ यस, टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ नो देन आई विल कंटिन्यू। सर हाँ बोलो, बोलो यस और नो। हेलो, बोलो यस और नो। नो सर। ओके ओके फाइन, सो अगर नहीं है तो मैं अभी स्टेबल डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अगर यस होता तो मैं पहले तुम लोगों को सुनता। सो अ सिस्टम, हर एक सिस्टम में एक इनपुट दिया जाता है और एक आउटपुट निकलता है। तो इनपुट होता है, जैसे मैं सपोज मैं अभी, मेरा क्लास है, ठीक, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं, मेरा 1 घंटे का एलोटेड क्लास है। सो दैट इज वट एवर आई एम गिविंग, दैट इज टाइम लिमिटेड, दैट इज बाउंडेड, वट एवर आई विल टीच यू दैट इज टोटली टाइम बाउंडेड। सो आई कैन से द इनपुट इज बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट अपलोड इट ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नाउ तुम लोग वो वीडियो जो है 1 घंटे में भी देख सकते हो, पूरा दिन भर के भी देख सकते हो, दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू। सो दैट इज अनबाउंडेड, के कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं 1 घंटे का वीडियो यूट्यूब में छोड़ा तो तुम उसको 1 घंटे में ही कंप्लीट करो। सो तुम उसको 15 मिनट अभी देखे, खाना खाने के बाद दोपहर में सोते हुए 15 मिनट देख लिए, फिर दोपहर शाम में बाहर निकले, फिर घर में आके फिर एक बार देख लिए 15 मिनट, तो यू कैन, you from your end it is unbounded, but whatever I am teaching that is bounded.
So that is the concept of bounded and unbounded. So a system is said to be stable. A system is said to be stable if and only if the bounded input will produce the bounded output. ठीक है. A system is said to be unstable if and only if the bounded input will produce unbounded आउटपुट. ठीक है, पहले हम जानते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड इनपुट आउटपुट क्या होता है. तुम लोग जब फिजिकल क्लास करोगे, ठीक है, तो अगर मेरा 1 घंटे का क्लास हो तो तुम 1 घंटा वो इनपुट में 1 घंटे में ही दूंगा एंड यू विल गेट द आउटपुट इन दैट 1 आवर ओनली. सो दैट इज स्टेबल अनस्टेबल. ठीक है, कि हम उसको अनस्टेबल करते हैं. ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे का क्लास लेके उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और तुम दिन के कभी भी टाइम में अनबाउंडेड है, आउटपुट इज अनबाउंडेड, देन इट इज नोन एज अनस्टेबल. ठीक है, ये मैं तुम लोगों का जब फिल्टर पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर से है तुम लोगों का थोड़ा, तभी मैं तुम लोगों को स्टेबल और अनस्टेबल पार्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा. अभी के लिए जान लो, a stable is said to be stable, a system is said to be stable if bounded input will produce bounded output. जैसे एग्जांपल ले लो एक, सपोज x of n इक्वल टू 1 2 3 4. ठीक है, 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, x of x dash of n that is 2 3 4 6. ठीक है, नाउ x of n प्लस x डैश n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 5 7 10. तो देखो इनपुट क्या है, इनपुट का एक रेंज है, ये इनपुट का भी एक रेंज है, आउटपुट भी मेरा एक रेंज पे आ रहा है. सो दैट इज बाउंडेड इनपुट विल गिव्स यू बाउंडेड आउटपुट. ठीक है, सो दैट इज स्टेबल वन. इफ इट विल नॉट गिव यू द स्टेबल वन, देन इट इज नोन एज अनबाउंडेड. सपोज x ऑफ n, ठीक है, इसी को हम x ऑफ 2n प्लस x डैश n बाई 3 करते हैं. तो ये देखो, इसका बाउंडेशन इनपुट और आउटपुट बाउंडेड है, बट तुम्हारा जो इनपुट, दो इनपुट बाउंडेड है, दैट इज -1 से 2 तक. बट व्हाट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन, ठीक है, तो तुमको पहले स्केलिंग करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी. देन स्केलिंग जैसे ही करेंगे, ये इसका जो इनपुट का बाउंडेशन है, आउटपुट का बाउंडेशन तुम्हारा ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज इफ दैट इज नॉट लिमिटेड, ठीक है, देन इट इज नोन एज अनबाउंडेड आउटपुट. जैसे मैं एनालॉग में इसको अच्छे से डिराइव तुम लोग ये कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. कर्सर कहाँ गया? सपोज this signal is giving you output this one. So यहाँ पे देखो, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, दिस इज x of t, दिस इज y of t, ये बाउंडेड है. सो दिस इज स्टेबल वन, स्टेबल सिस्टम. ठीक है, नाउ मैं एक इनपुट दे रहा हूं x of t, मुझे आउटपुट मिल रहा है दिस वन. ठीक है, सो दिस इज y ऑफ t. सो दिस इज, इसका ये बाउंडेड है, इसी बाउंडेड में तुम्हारा y ऑफ t जो निकल रहा है वो अनबाउंडेड है. सो दिस इज नोन एज अनबाउंडेड.
system. Okay. So any doubts up to this? Have you any doubt? If not, then I will give you an assignment, which has to be जितना भी इस वीक का असाइनमेंट है नेक्स्ट मंडे तक मुझे सबमिटेड चाहिए. ठीक है. सबमिटेड कहाँ पे? दैट इज द मेन पार्ट. सो तुम लोग एक काम करोगे, जितना भी असाइनमेंट है डिपार्टमेंटल मेल आईडी है तुम लोगों के पास, तो डिपार्टमेंटल मेल आईडी में तुम लोग एक फाइल बनाओगे, दैट इज डीएसपी असाइनमेंट ऑफ द वीक. ये वीक कब से कब चालू हुआ है? 25 से 30 तक. 25 से 30 तक का असाइनमेंट तुम लोग एक जगह लिखोगे, उसको सबमिट करोगे डिपार्टमेंटल मेल आईडी में. ठीक है. सो नाउ हैव यू एनी डाउट्स? Yes, I will give you the assignment for today's session. Have you any doubts? Any doubts? No, sir. Okay, so I can give the Sir. so I can give the assignment. तो assignment मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आज के क्लास का. इससे पहले भी शायद जो क्लास हुआ है उसमें भी कुछ असाइनमेंट था, तो एक ही साथ में ले लूंगा. दैट इज असाइनमेंट्स. So question number 1, I'm giving you some systems. ठीक है, and you have to verify whether the system is stable, whether the system is fulfilling the criteria or not. Question number 1, y of n equal to x of n square by 2. ये एक सिग्नल है. ठीक है. दूसरा है y of n equal to n x square n. ठीक है. ये दो सिस्टम है. डिटरमाइन if the following if the systems are point number 1, that is time variant or not. Second, point number 2, that is linear or non-linear. And point number 3, that is causal or non-causal. ये तीनों, ये क्वेश्चन है असाइनमेंट का. ठीक है. एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. So this is the assignment and that much for today. Okay, next class I will take care as per the schedule. Okay, now I am going to